six blind men. Six friends decided to go to a fair. There they heard people shouting, "Look, an elephant is coming. Let us take a ride on it." When the elephant came near, the friends also became anxious to know how an elephant looked like. One by one, they touched the elephant. The first man moved his hand around its stomach. He said, "An elephant is like a wall." The second blind man was standing near the stump of elephant. He touched and he said, "An elephant is smooth and pointing at it. It is like a spear." The third blind man moved his hand around the elephant's neck. He said, "You people are talking nonsense. An elephant is like a pillar." The fourth blind man the fourth blind man touched the elephant's trunk. He could still move it. He said, "An elephant is like a big snake." The fifth blind man the fifth blind man touched the elephant's tail. He said, what all are you saying? An elephant is like a rope." The sixth blind man touched the elephant's ear. He said, "An elephant is like a big fan." Each of them thought that he was right. In the same way, we think our opinion to be right and we fight with others who have different opinions. At last, I would like to say that we should learn to appreciate other people's opinion. This will go a long way in improving our relations with them. Thank you, teachers, for giving me this wonderful opportunity. Myself, Sumayasra from 9th standing off. కలిగితే కండ కలదు కండ కలవాడే మనుషులు. ఈ సులోమని మనుషులు ఉంటే దేశమే గది బాగుపడును అన్నాడు గురుజాడ. ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి లేకపోతే ప్రపంచంలో ఏ సంపదైనా వ్యర్థమే. సామాజిక జీవిగా మనిషి ప్రతి పౌరునికి వారి సమాజం పట్ల ఒక గౌరవం, ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది. అలాగే సమాజం కూడా వారి పౌరులను బాగుండాలనే కోరుకుంటుంది. మనిషి ఆరోగ్యంగా జీవించాలి అంటే వారి శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగం ఆరోగ్యంగా మరియు మంచి స్థితిలో ఉండాలి. అదే ఒక సమాజం బాగుండాలి అని అంటే ప్రతి పౌరుడు మంచి నడవడికతో ఇతరుల భావాల పట్ల గౌరవం కలిగి ఉండి వినయం, నిజాయితీ ఇవన్నీ కలిగి ఉండాలి. మరియు వారు ఇతరులను బాధించకుండా వారిని మానసికంగా అవమానించకుండా ఉంటూ మంచి పౌరసత్వాన్ని పొందాలి. పౌరులకు మంచి మనసు, మంచిగా ఆలోచించే శక్తి చాలా ముఖ్యమైనవి. వీరు జ్ఞాపకాలను మరియు అనుభవాలను నెమరవేసుకుంటూ వారు చేయదలుచుకున్న పనిని మరియు వారి విజయానికి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఒక దేశానికి ఒక పెద్ద ఆస్తి పౌరుల యొక్క గుర్తిపడం. మేధావులు మరియు వారు నడుపుతున్న సంస్థలు పట్టుదలతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయం వైపు దూసుకు వెళుతున్నాయి. విజయమైన విఫలమైన పోరాడుతూ నిజమైన ప్రేమతో నిస్వార్థంగా ఉంటూ భావోద్వేగాలు, ఆశీర్వాదాలు, గౌరవం వీటన్నిటినీ తమ ఆస్తులుగా భావించి విజయాన్ని సాధించి శాశ్వతంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉంటూ నేను బతకగలను అని నిరూపిస్తున్నారు. పౌరులకు అతి ముఖ్యమైనది సమయం. విద్యార్థుల గురించి వచ్చేసరికి విద్యార్థులు ఒక దేశానికి వెన్నుముక మరియు ఒక గొప్ప ఆస్తి. విద్యార్థులు శిక్షణను పొందుతూనే వారు దేశ అభివృద్ధికి మరియు దేశ భవిష్యత్తుకు సహాయపడాలి. గౌరవం, సహనం ఇవన్నీ కూడా దేశానికి ఒక గొప్ప సంపదలే. మనిషి ఆరోగ్యంగా మరియు పౌష్టిక ఆహారం కలిగి సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉండడానికి ప్రభుత్వం మంచి ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం కూడా మంచిగా తగినంత వారు ప్రోత్సహించాలి. ఆరోగ్యకరమైన దేశంలో ఉత్పత్తి మరియు వృద్ధి రేటు పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక సమాజం తరచుగా అనారోగ్యానికి గురి అయితే ఉత్పాదకత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన పౌరులు ఉంటే కేవలం ఆర్థిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, ప్రాంతాలు, దేశాలు, రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కూడా పెంపొందించవచ్చు. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రకారం 2021లో భారతదేశ జనాభా 1.39 బిలియన్లు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాభా సంఖ్యలో చూసుకుంటే కనుక భారతదేశం 2వ స్థానంలో ఉన్నది. ఆరోగ్య స్థితిలో కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పటికీ అది ఎదుర్కొంటూ వస్తుంది మరియు ఆసుపత్రులకు వాటికి కేంద్రంగా మారింది. ఆరోగ్యకరమైన శైలి లేకపోతే ఎవరికి చాలా మంచిది కాదు. మంచి ఆరోగ్యం లేకపోతే సైనికుడికి సైన్యం లేని లాంటిది. మంచి ఆరోగ్యం లేకపోతే మంచి నీరు లేని నది లాంటిది. అందుకే నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే జీవితం సంపూర్ణంగా జీవించాలి అంటే మంచి ఆరోగ్యం కలిగి ఉండాలి. ధన్యవాదములు.
और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है जिसने विज्ञान की दुनिया को वर्चस्व स्थापित करने में मदद की है। एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में और प्रयोग किए जाने से मानवीय क्षमताओं को मात देने में सक्षम रोबोट सामने आए हैं जो इंसानों की तुलना में अधिक कुशलता से काम करते हैं। वो मनुष्यों के जैसा थोड़ी देर काम करने के बाद थकते नहीं है। उनकी उच्च सटीकता और 24 घंटे उपलब्धता उन्हें काम के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का अनुप्रयोग ने उद्योगों को बढ़ने और समृद्ध होने में मदद की है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ बहुत बड़े हैं, इसलिए खतरे भी है। रोबोट ड्राइवरों ड्राइवरों की नौकरियां ले रहे हैं और धीरे धीरे कार्य क्षेत्र पर हावी हो रहे हैं, जिससे मनुष्य बेरोजगार हो रहे हैं। वैसे ही बेरोजगारी मनुष्य पर हावी हो रही है, वे बेचैन हो जा रहे हैं और अपनी ऊर्जा का उपयोग अपराध आदि के गलत क्षेत्रों में कर रहे हैं, जिससे सामाजिक चिंता को बढ़ावा मिल रहा है। यह सच है कि रोबोटिक्स ने और रोबोट ने अधिक हजारों से ज्यादा नौकरियां ले ली है, लेकिन उन्होंने रोबोट निर्माता, रोबोटिक तकनीशियन आदि सहित कुछ नई नौकरियों को पैदा भी किया है। रोबोट में रचनात्मकता, सहानुभूति, सामान्य ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है, जिनमें से ये सभी मनुष्यों के पास है। चिकित्सक, मनोचिकित्सक, शिक्षकों, वकीलों, ऐसे कई नौकरियां जिनमें इन कौशलों की संयोजन की आवश्यकता होती है, कभी भी प्रचलित नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन रोबोट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए है, बाकी के अन्य कार्यों के लिए हमें मनुष्यों की आवश्यकता होती है। अंत में यह कहूँगा, रोबोट कभी भी मानव की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें रचनात्मकता नहीं है और कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षा ही जीवन की असली उड़ान है जो देता है इंसान को ऊंचा आसमान। सुप्रभात, मैं आज आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोलने आया हूँ। एक दौर था जब बच्चे अध्ययन के लिए गुरु के पास पढ़ने जा रहे थे। वो 24 वर्ष की आयु में पढ़ाई पूरी कर घर लौटते हैं। इसे हम गुरुकुल प्रणाली कहते हैं। बाद में स्कूल की शिक्षा का चलन चालू हुआ और आज भी इसी का दौर है। पिछले 5 वर्षों में इंटरनेट क्रांति ने शिक्षा के माध्यम को जन्म दिया, वो है ऑनलाइन घर बैठी शिक्षा। कोरोना महामारी ने मानव के समूचे तंत्र को विलुप्त कर दिया। आज मैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, आज ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें बच्चे घर बैठे ही ऑनलाइन जुड़कर अध्यापक से बात कर सकते हैं, देश के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ सकते हैं। इसे लोग ऑनलाइन क्लासेस भी कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी अपने सहूलियत के समय का चुनाव कर ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। शिक्षक स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा सिस्टम है जहां अध्यापक भिन्न प्रकार के ऐप का उपयोग कर शिक्षा को आसान बना देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कुछ फायदे, यह शिक्षा समय भी बचाता है, क्योंकि पहले स्कूल में जाने में लगने वाले समय की बचत होती है, लेकिन आज ऑनलाइन शिक्षा है जिससे हमारा समय भी बचता है। और पहले बच्चे एकाग्र होकर नहीं पढ़ पाते थे और एक्टिविटीज जैसे नाच गाने आदि से दूर रह जाते। ऑनलाइन शिक्षा इनका समय बचाता है। यह बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ बच्चे घर बैठे ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और यह बहुत ज्यादा आरामदायक है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती है, जिससे बच्चे अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने के कारण वीडियो नोट्स और डाटा ऑनलाइन हो जाते हैं, जिससे ट्यूशन की फीस भी बच जाती है और स्कूल में ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च में कमी होती है। जैसे कि आपको पता है, जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के नुकसान होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। पहला नुकसान, इंटरनेट होना अनिवार्य। अगर आप ऐसी जगह है जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं, तो वहां आप ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा है इंटरनेट का गलत उपयोग करना। ऑनलाइन शिक्षा होने के कारण माँ बाप अपने बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल दे देते हैं, जिसका बच्चे गलत उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बहाने मोबाइल पर गेम खेलना या अन्य ऐप का उपयोग करते हैं। तीसरा है छात्रों को समझने में समस्या। ज्यादातर टीचर छात्रों को सीधी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन छात्र टीचर अध्यापक की बोलचाल, हाव भाव और प्रतिक्रिया को देखकर समझ सकते हैं कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं साबित किया जा सकता कि हम क्या समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आमने सामने बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते। चौथा है आंखों और स्वास्थ्य पर
बुरा असर पड़ना। घंटों मोबाइल या लैपटॉप में ऑनलाइन शिक्षा करने के कारण आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कम उम्र में ही चश्मा लगवाने का डर रहता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंत में मैं यही कहूँगा, भले ही ऑनलाइन शिक्षा के जितने फायदे हो, जितने भी समस्या हो, लेकिन इस कोविड-19 की महामारी में शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा ने ही छुड़ाए रखा है। धन्यवाद। आएंगे। ये टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक तौर की मशीन है जो किसी तौर पर कंप्यूटर पर डाले गए प्रोग्राम या निर्देश के आधार पर काम करती है। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रागौगिक कहा जाता है। प्रागो का मतलब विज्ञान को एक तरह से उपयोग करना भी होता है, जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रागौगिक के अंदर किसी सर्वोच्च या प्रोडक्ट के निर्माण के लिए तकनीक, कौशल, तरीके, प्रक्रिया आदि चीज शामिल होती है। अभी रोबोट क्या है? रोबोट एक तरह की मशीन है जो किसी तौर पर कंप्यूटर पर डाले गए प्रोग्राम या निर्देश के आधार पर काम करती है। ये किसी सर्वोच्च या प्रोडक्ट के निर्माण के लिए तकनीक, कौशल, तरीके, प्रक्रिया आदि चीज शामिल होती है। ये किसी मुश्किल भरे काम को सरलता से अपने आप करने में सक्षम होती है। यह मैकेनिकल, डिजिटल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के मिश्रण से बनाई गई है। रोबोट हमारे समाज में एक आम दृश्य बनता जा रहा है। वह खुदरा, निर्माण, चिकित्सा और यहाँ तक कि परिवहन सहित अलग अलग क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकता है। रोबोट आसानी से मानव श्रमिक की जगह ले सकता है, क्योंकि वह भारी से भारी भार उठाने के लिए काफ़ी मजबूत होता है। यह 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम कर सकता है। इस चीज़ का एक और पहलू भी है जिससे हम इंसान को रोबोट से बदलने के बारे में सोचना चाहिए। रोबोट मानव श्रमिक की तरह भावनाओं को सोच नहीं सकते। रोबोट रचनात्मक रूप से सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी सब कुछ उनकी उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाने से या वॉइस कमांड देने से उपलब्ध हो सकता है। एक और दोष ये है कि बच्चों को नई चीजें सीखने में प्रोत्साहन नहीं मिलता। धन्यवाद। Good morning. Today's thought for the day. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. Thank you.